محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالی صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ اچانک شہر نظام آباد کے ون ٹاؤن حدود میں محکمہ پولیس کی جانب سے کمیونٹی کانٹیکٹ کارڈن سرچ پروگرام کا انعقاد، مختلف گاڑیوں کو کیا گیا ضبط۔ ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، 28 اکتوبر کو ہوگی پہلی تاریخ، 7 نومبر کو ہوگی 11ویں شریف۔ منوگڑو کی عوام سی ایم KCR کے ساتھ بی جے پی امیدوار کی ہوگی ضمانت ضبط۔ منوگڑو ضمن انتخابی مہم سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا خطاب۔ منوگڑو حلقے میں TRS کی کامیابی یقینی، PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی انہوں نے ریاستی وزیر KTR سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی مہم پر کیا تبادلہ خیال۔ عوام سائبر کرائم کے مطابق آگاہی حاصل کرے، اپنے ذاتی و بینک کی معلومات فون پر کسی کو نہ دے۔ فون ان پروگرام سے CP کیانا گراجو۔ ملک کی ترقی کے لیے KCR کی قیادت ضروری، BRS NRI سیل کوارڈینیٹر مہیش بیگالا کا خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ربیع الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، 28 اکتوبر بروز جمعہ کو ہوگی ربیع الثانی کی پہلی تاریخ، وہ نومبر 7 بروز پیر کو ہوگی 11ویں۔ آج 29 ربیع الاول 1444 ہجری کو شہر و ضلع کے مختلف مقامات ماہ ربیع الثانی 11ویں کا چاند نظر نہیں آنے کی ہندوستان کے مختلف رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ آسمان صاف ہونے کے باوجود بھی شہر میں چاند نظر نہیں آیا اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر بھی یہی حال رہا، لہٰذا ماہ ربیع الثانی 1444 ہجری کا آغاز 28 اکتوبر بروز جمعہ سے ہوگا انشاءاللہ، اور ربیع الثانی کی 11ویں 7 نومبر بروز پیر کو ہوگی۔ 29 اکتوبر کو شہر نظام آباد میں جامعۃ العلماء ضلع نظام آباد کی جانب سے منعقد ہونے والے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و کل ہند نعتیہ مشاعرے کو کامیاب بنانے کی جامعۃ العلماء منڈل آرمور کی اپیل۔ جامعۃ العلماء منڈل آرمور دفتر پر ایک میٹنگ عمل میں لائے گی، جس میں 29 اکتوبر 2022 کو جامعۃ العلماء ضلع نظام آباد کی جانب سے ہونے والے عظیم الشان جلسہ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کل ہند نعتیہ مشاعرے کے پوسٹرز کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر صدر جامعۃ العلماء آرمور حافظ شیخ ابراہیم نے صحافیوں کو بتایا، حافظ محمد لقیق خان صاحب صدر جامعۃ العلماء ضلع نظام آباد کی زیر صدارت میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ مزید یہ 29 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام نالج پارک گراؤنڈ بودھن روڈ نظام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم سب کے ہر دل عزیز شاعر مولانا طارق جمیل صاحب اور قاری معین الدین صاحب، اسی طرح قاری معظم حیات صاحب اور بھی ملک کے مشہور و معروف شعراء کرام اپنا کلام سنائیں گے۔ اسی طرح اس جلسے میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روشنی ڈالنے کے لیے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب کرناٹک اور مفتی محمود زبیر صاحب جنرل سیکرٹری جامعۃ العلماء تلنگانہ و آندھرا کا بھی خطاب ہوگا، لہٰذا ہم تمام ہی شہر آرمور، پیرکٹ و ماموڈی پلی اور اسی طرح بالکنڈا منڈل، بیمگل منڈل کے بھی تمام عوام الناس سے ہونے والے کل ہند نعتیہ مشاعرے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شرکت کی گزارش کرتے ہیں، اور آپ تمام ہی دور دراز سے آنے والے مہمانوں کے لیے بعد نماز مغرب جامعۃ العلماء نظام آباد کی جانب سے طعام کا بھی نظام رکھا گیا ہے۔ اسی لیے گزارش ہے کہ
अपने मसरूफियात को आगे पीछे करते हुए इस प्रोग्राम में पहुंचकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। इस मौके पर हाफिज इब्राहिम साहब, सदर जमीयतुल उलमा जनाब उस्मान अली हजरमी, नायब सदर जनाब अब्दुल समद साहब, रुकन जनाब यूसुफ साहब खाजिन, हाफिज फारूक साहब, हाफिज रिजवान साहब, हाफिज अब्दुल वहीद साहब, हाफिज अमजद साहब, हाफिज महबूब साहब, हाफिज काशिफ साहब, हाफिज सोहेल साहब, हाफिज हबीब व दीगर मौजूद थे। पर एक तकरीब अमल में लाई गई है जिसमें 29 अक्टूबर 2022 को जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से होने वाले अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील हिंद नातिया मुशायरा के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। हाफिज नईफ खान साहब, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की सदारत में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मज़ीद ये 29 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम नाले पार गिराउंड गोदन रोड निज़ामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें हम सब के हर दिल अज़ीज़ शायर इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब, कारी मोइनुद्दीन साहब, उसी तरह कारी मुज़म्मिल हयात साहब और भी मुल्क के मशहूर मारूफ शौरा इकराम अपना कलाम सुनाएंगे। उसी तरह इस जलसे में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालने के लिए हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब करना ज़िले टीआरएस सदर आर्मर मिलिट जीवन रेड्डी ने रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात करते हुए मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा सर्वे रिपोर्ट के तहत TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से इल्म में लाया। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले TRS सदर जीवन रेड्डी ने रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात करते हुए मुनगुरु हल्का असम्बली में मुनक़्क़िद होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में TRS पार्टी की जानिब नामज़द उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा सर्वे रिपोर्ट TRS पार्टी के उम्मीदवार की तायद में होने का इजहार किया। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से 29 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होने वाले जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरे के पोस्टर्स की जामे मस्जिद भीमगल में रस्म जव अवाम से शिरकत की अपील। जमीयतुल उलमा शाह भीमगल जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़र-ए-एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरा 29 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा नॉलेज पार्क स्कूल ग्राउंड बोधन रोड निज़ामाबाद पर मुनक़्क़िद हो रहा है। इस जलसे के पोस्टर्स की रस्म जा आज जामे मस्जिद भीमगल में बाद नमाज ज़ोहर अंजाम दी गई। इस मौके पर मौलाना जमील बेग सदर जमीयतुल उलमा भीमगल ने खिताब करते हुए कहा कि ये जलसे में मुल्क के हज़रत मौलाना जमील अहमद क़ासमी साहब बेंगलुरु तशरीफ ला रहे हैं, जिनका खिताब होगा। अलावा इसके मुल्क के मुमताज नातख्वा शौरा तशरीफ ला रहे हैं, इसीलिए इस जलसे में कसीर तादाद में शरीक होकर मिली जमीयत का सबूत दे। इस मौके पर इनके हमरा जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान मौलाना जावेद भाई, अलीम भाई, मोहम्मद अब्दुल मसूर, रिजवान, हबीब कुरैशी, मौलाना तौफीक के अलावा दीगर हजरात मौजूद थे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में हक़ तआला ने अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसका महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, यानी अल्लाह की रबूबियत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। शहर के डिवीज़न नंबर 19 कंटेश्वर में मियां नीतू किरण ने मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा बेटी रोड की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने शहर के डिवीज़न नंबर 19 कंटेश्वर में मुकामी कॉरपोरेटर सविता श्रीनिवास के हमरा बीटी रोड की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद ज़िले की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है और हाल ही में CM KCR निज़ामाबाद का दौरा करने के मौके पर शहर की तरक्की के लिए 100 करोड़ की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत हर एक डिवीज़न को तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम के अलावा TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఇన్ని రోజులకు అది అవుతుంది। ఇంకా ఇలాంటివి
అన్ని వార్డులలో కూడా చాలా మటుకి పనులు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 30 నుంచి 40 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి వార్డులో కూడా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి 20 లక్షలతో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక కార్పొరేటర్లు అక్కడ ఎమర్జెన్సీ ఏది ఉందో అది వాళ్ళు ఆ పనులను నా ద్వారా ప్రారంభించి మొదలు పెట్టడం జరుగుతూ. साइबर मुजरिमीन के ताल्लुक से मुकामी अवाम को चौकस रहने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने फोन इन प्रोग्राम के जरिए की ख्वाहिश। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के ज़ेरे निगरानी में सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ा फ़ोन इन प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाते हुए निजामाबाद तारमुर बोधन डिवीज़न के अहाते में मुक़ीम अवाम को फ़ोन इन प्रोग्राम के तहत साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साइबर मुजरिमीन की जानिब से OTP ATM पिन नंबर के अलावा बैंक खाते की तफसीलात को हासिल करने की कोशिश को मुकामी अवाम हाजिर दिमाग के साथ नाकाम बनाए और मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें और इसके अलावा ख़वातीन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में तस्वीर को अपलोड ना करें, क्योंकि साइबर क्राइम मुजरिमीन के जाल में फंसने का अंदेशा रहता है। और बैंक से नकद रकम की लेन देन में मुकम्मल एहतियात करें और अगर आप बैंक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो तो रास्त तौर पर बैंक से रब्त पैदा करके मालूमात हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, CCRB इंस्पेक्टर डी प्रताप, SB SI MD मुखिद फारूकी, शीटी मिसाई, अब्दुल रशीद व दीगर ने शिरकत की। मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने चौतुपाल मंडल के नगराम देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इंतखाबी तशरीह अमल में लाई। मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने चौतुपाल मंडल D के नगराम देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए मौज़े में वाक़िअ तमाम घरों से रुजू होकर TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के बारे में मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी यानी कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इससे पहले रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के चौतुपाल मंडल के नगराम देहात में आमद के मौके पर मुकामी खवातीन की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ार रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात जैसे कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, CM रिलीफ फंड स्कीम, आसरा स्कीम के तहत 57 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द को वजीफा फराहम करने का इजहार करते हुए मुकामी अवाम को मरकज के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले अवाम मुखालिफ स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाए। वो बातज़ा इन्होंने हैंडलूम मंसूआत का जायजा लेते हुए कहा कि मरकज के दौर इख्तिदार में GST के नाम पर 10 लाखों के गरीब और कमजोर तबकात इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी हुकूमत ने हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन अब मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने हैंडलूम अशिया पर 5% GST लगा दिया है और इसे बढ़ाकर 12% करने की कोशिश के खिलाफ TRS हुकूमत की जानिब से GST को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से इन्होंने मुकामी अवाम को मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात मुनक़्क़िद होने की वजूहात से वाकिफ करवाते हुए TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी यानी कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट मुनरकापू महिला सेक्शन चेयरपर्सन अकुला ललिता ने चौतुपाल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में TRS पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत तेलंगाना स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट मुनरकापू महिला सेक्शन चेयरपर्सन आकुला ललिता ने चौतुपाल मंडल के अरेजुड़ियम देहात में TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को आगाही करवाने के साथ साथ मरकज के दौर इख्तिदार में मुखालिफ स्कीमात के ताल्लुक से मालूमात फ्राहम की और कहा कि राजगोपाल रेड्डी जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इन 4 सालों में कम से कम एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया और गांव की तरक्की के ताल्लुक से कोई तरक्याती कामों को रूबे अमल में नाला कर मनगुड़ू हल्के में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़्क़िद करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करने के बाद सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम और गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर
इलाज और मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवाया और इसी तरह से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा के अलावा ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली की सैराबी की जा रही है और पेंशन जो 200 रुपये था इसे 2000 रुपये कर दिया गया। इन्होंने मजीद कहा कि आपाशी की सहूलियात की फ्राहमी से बेहतर फसल हो रही है। काश्त करदा पैदावार को खरीदने के लिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को मुनासिब कीमत फ्राहम की जा रही है। इन्होंने मुकामी अवाम को मुनगड़ू हल्का असम्बली में तेजी के साथ तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सरहदी इलाकों में सिर्फ मुसलमानों की जानकारी क्यों चाहिए? ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी में बीजेपी का रुकन मुलविस असदुद्दीन अवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इसे मुस्लिम मुखालिफ करार दिया है। एनआरसी का मसला उठाते हुए अवैसी ने मंगल को ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी मुसलमानों को शक की निगाह से देखना है। सिर्फ मुसलमानों की ही प्रोफाइलिंग क्यों? हिंदू बिरादरी भी सरहदी इलाकों के करीब रहते हैं, क्या इनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है? क्या पिछले दरवाजे से एनआरसी को नाफिज किया जा रहा है? असदुद्दीन अवैसी ने मजीद लिखा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने पर गैर मुस्लिमों को गिरफ्तार किए जाने के लिए केसेस सामने आए हैं। इनमें सिक्योरिटी एहलकार और यहाँ तक के बीजेपी का एक कारकुन भी शामिल है। गोपनपल्ली के मिसाली किसान चिन्नी कृष्णड़ू के ज़राई मैदान का RBVRR स्कूल के तलबा ने किया मुशाहिदा। शहर के मुबारक नगर में वाक़ RBVRR हाई स्कूल के 8-9 में ज़ेर तालीम तलबा ने आज गोपनपल्ली में वाक़ चिन्नी कृष्णड़ू की कुदरती नामियाती काश्तकारी मैदान का मुशाहिदा किया, जो कि 36 अक़साम की फसल की काश्त करते हुए एक मिसाली किसान का मुकाम हासिल किया। इस मौके पर ज़राई मैदान में नामियाती तरीके से काश्त करदा फसलों के बारे में तलबा को वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में RBVRR सोसाइटी सदर E अमृता रेड्डी, EC मेंबर N निम्बा रेड्डी, असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। इस मौके पर RBVRR सोसाइटी सदर श्रीमती E अमृता रेड्डी, सेक्रेटरी L गोवर्धन रेड्डी, एजुकेशन कमेटी चेयरमैन C नरेंद्र रेड्डी, करस्पॉन्डेंट श्रीमती P रजनी रेड्डी व दीगर असातिज़ा साहिबिन ने तलबा को कुदरती नामियाती काश्तकारी के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए चिन्नी कृष्णड़ू को इजहार तशक्कुर पेश किया। First, we thankful for the Chinni Krishna sir. We are very surprised if seeing these different types of crops. There are 36 and more than crops here. చిన్ని కృష్ణ సార్ గారు ఇన్వైట్ చేశారు. అతనికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం ఇక్కడికి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు. ఇక్కడ సేంద్రియ వ్యవసాయం పండించడంలో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. దాన్ని అందరూ పండించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఫామ్లో ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారు చేయబడిన విత్తనాలను, పంటను వారు చూపించి పిల్లలకు చక్కగా వివరించారు. ఇది ముందు తరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం. చిన్ని కృష్ణుడు గారు కూడా ఒక ఆదర్శంగా ఇక్కడ నిలిచారు వారు. ఎందుకంటే వారు చెప్పారు ఇప్పుడే, నేను పంట పండించింది కూడా 100 గ్రాములు ఉచితంగా ఇస్తున్నాను. रोटरी क्लब ऑफ कामारेड्डी के ज़ेर निगरानी में गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबात को नोटबुक व पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। रोटरी क्लब ऑफ कामारेड्डी की ज़ेर निगरानी में दोमाकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबात को नोटबुक व पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर क्लब सदर एस लक्ष्मी नरसिम्लू ने खिताब करते हुए कहा कि रोटरी के ज़ेर निगरानी में तालीम को खुसूसी तौर पर अहमियत देते हुए गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 200 तलबात को नोटबुक व पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। लिहाजा तमाम तलबात सख्त मेहनत के ज़रिए तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तिरुमला गौड सरपंच N अंजलि श्रीनिवास, रोटरी क्लब ऑफ कामारेड्डी सेक्रेटरी P सत्यम, खजांची D सुधाकर, मेमरान बाला किशन, P अंजय्या, काशी नारम व दीगर ने शिरकत की। హనుమకొండ బాలికల పాఠశాలకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉన్నది. పిల్లలు ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు బాయ్స్ స్కూల్స్ కన్నా మంచిగా చదివి మంచి మంచి ర్యాంకులు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కానీ అందరూ పేద కుటుంబానికి చెందినవారే ఉన్నారు సార్. ఈ స్కూల్కు మనం ఎంత సేవ చేసినా, ఎంత హెల్ప్ చేసినా. नए वोटर शनाख्ती कार्ड की 10 दिन में दस्तयाबी मुमकिन। नया वोटर शनाख्ती कार्ड बनाना बहुत आसान है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट
पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आप वोटर ID का इंदराज करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात मौजूद है। इसमें कई फॉर्म्स भी शामिल है जिन्हें आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत हिंद ने अब वोटर शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अमल शुरू कर दिया है, तो लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब वो दरख्वास्त के जरिए अपना वोटर शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। तकरीबन 10 से 20 दिनों में आपका वोटर शनाख्ती कार्ड आपके घर पहुंच जाता है। नया वोटर ID ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नए वोटर शनाख्ती कार्ड की फीस 0 रखी गई है ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी अपना वोटर शनाख्ती कार्ड बनवा सके। वोटर शनाख्ती कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी शहरियत की भी शनाख्त करता है। वोटर शनाख्ती कार्ड के जरिए आप मुख्तलिफ किस्म के कागजात हासिल कर सकते हैं। तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद आपकी ईमेल पर एक मेल आएगा। रजिस्टर ईमेल पर एक लिंक भी आएगा। इस लिंक से आप वोटर शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त के स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे। आपका वोटर शनाख्ती कार्ड 10 से 20 दिनों में डाक के जरिए भेजा जाएगा। नेज़ यहाँ से आप अपनी सहूलियात के मुताबिक फॉर्म डाउनलोड कर सकती है। अगर आप पुराने वोटर शनाख्ती कार्ड में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के जरिए तब्दीली कर सकते हैं। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़े इंदौर स्टार सुपर स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल का ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इफ्तिताह अमल में लाया। ज़िले निज़ामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़े इंदौर स्टार सुपर स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल का ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, होप हॉस्पिटल डॉक्टर गोपी कृष्णा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नीली रामचंद्र, संध्या रानी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि SVR हॉस्पिटल में इंदौर स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने को काफ़ी खुशान करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर संध्या रानी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు కార్తీక సందర్భంగా హాస్పిటల్ ఇందూర్ స్టార్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కేర్ ప్రారంభించాము. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇందూర్ పట్టణ ప్రజలకి నా గురించి బాగా తెలుసు. ఇక్కడే మేము వైద్య వృత్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు మా మిత్రుడు నాకెంతో ఆప్తుడు మా డాక్టర్ కుమార్ న్యూరో సర్జన్ గారితో కలిసి ఈ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 5 नवंबर को ज़िले की इमारतुल अदलिया में तलसेमिया मुतासरीन के लिए खून का अतिया कैंप क़याम अमल में लाने के पेश नज़र ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी में 9 नवंबर को लीगल सर्विस के पेश नज़र 5 नवंबर को ज़िले की इमारतुल अदलिया में तलसेमिया मुतासरीन के लिए खून का अतिया कैंप क़याम अमल में लाने के पेश नज़र ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। तिरुपति के अहम बस स्टैंड तेलंगाना रिजर्वेशन क्वार्टर का RTC चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने तनख्वाह अमल में लाई। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने तिरुपति का अहम बस स्टैंड तेलंगाना रिजर्वेशन काउंटर की तनख्वाह अमल में लाते हुए बस पार्किंग से मुताल्लिक़ अराज़ी का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। मुल्क में मौजूदा वसाइल का सही इस्तेमाल अमल में लाते हुए मुल्क को तमाम शोबों में आगे बढ़ाना सिर्फ CM KCR से ही मुमकिन होने का BRS NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला का इजहार। सिडनी में BRS ऑस्ट्रेलिया शाख के वाइस प्रेसिडेंट राजेश गिरी रापुलू के ज़ेरे निगरानी में मुनक़दा इजलास में MLC सुरभि वानी ने शिरकत की। इस मौके पर BRS NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा वसाइल का सही इस्तेमाल अमल में लाते हुए मुल्क को तमाम शोबे में आगे बढ़ाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से ही मुमकिन है। और इसके अलावा मुनगुड़ू हल्का असम्बली में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS ऑस्ट्रेलिया शाख के सदर के नागेंद्र रेड्डी, मेम्बरान वेंकट रमना रेड्डी, रविंदर चिंतामणि व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िद होने वाले पले निद्रा प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनान ने भारी पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की मंडल सतह के कायदीन ने की ख्वाहिश। नवीपेट मंडल की BRS पार्टी के मंडल सतह के कायदीन ने कहा कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के ज़ेरे निगरानी मुनक़िद होने वाले प्ले निद्रा प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान भारी पैमाने पर शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। నవపేట మండలంలో మొదట ఎమ్మెల్యే గారు ఎంచుకోవడం మా గౌరవకారణము. దాంతో భాగంగానే నవపేట మండలం నారేశ్వర గ్రామానికి ఎంచుకోవడము, మరి అక్కడి నుంచి రావాలని
మరి ఇక్కడ సంకల్పంతో మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉండడం మా సంతోషంగా మా మండల వాసులకందరికీ సంతోషంగా తెలియజేస్తాం. अचानक शहर निजामाबाद के वन टाउन हदूद में महकमे पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद, मुख्तलिफ गाड़ियों को किया गया जब्त. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. अचानक शहर निजामाबाद के वन टाउन हदूद में महकमे पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद, मुख्तलिफ गाड़ियों को किया गया जब्त. माह रबीउल सानी का चांद नजर नहीं आया. 28 अक्टूबर को होगी पहली तारीख, 7 नवंबर को होगी 11वीं शरीफ. मनोगुड़ी की अवाम सीएम केसीआर के साथ बीजेपी उम्मीदवार की होगी जमानत जब्त. मनोगुड़ी जिम्द इंतखाबी मुहिम से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब. मनोगुड़ू हल्के में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी. इन्होंने रियासती वज़ीर केटीआर से मुलाकात करते हुए इंतखाबी मुहिम पर किया तबादले ख्याल. अवाम साइबर क्राइम के मुताबिक आगाही हासिल करे, अपने ज़ाती व बैंक के मालूमात फ़ोन पर किसी को ना दे. फ़ोन इन प्रोग्राम से सीपी कियाना गराजू. मुल्क की तरक्की के लिए केसीआर की क़यादत ज़रूरी, बीआरएस एनआरआई सेल कोऑर्डिनेटर महज बिगाला का खिताब. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मुतज़्ज़िर खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.